Good morning, students. Today we are going to discuss third chapter of biology class 11, plant kingdom. Before this, we already discussed about biological classification, in which we study how the scientists classify living organisms into convenient category. In biological classification, we already have discussed the classification of living organisms from ancient time to modern time, which is five kingdom classification of Whitaker's. R.H. Whitaker classified living organisms into five kingdoms, which is Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Okay? Plantae and Animalia. In previous chapter, chapter 2, we already have discussed about Monera, Protista, and Fungi. Okay? Now, in this chapter, we will discuss this kingdom, Plantae. Okay? Carolus Linnaeus give artificial system of classification. Artificial system of classification. Okay, artificial system of classification, and Bentham and Hooker give natural system of classification to put different plant into different convenient category of plant kingdom, like algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm. We have five categories in plant kingdom: algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm. If we talk about artificial system of classification, in this classification, Carolus Linnaeus taken in consideration only superficial morphological character. Superficial morphological character. Carolus Linnaeus ने केवल morphological character देखे. ठीक है, morphological character means physical appearance. ठीक है, superficial morphological character means or physical appearance. The plant's physical appearance, like color of leaf, number of leaf. Okay. Okay. Shape of leaf, and arrangement of leaf. Now, but this artificial system of classification of Carolus Linnaeus was not accepted. ये सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, डिस्कार्डेड हो गया. इसके डीमेरिट्स क्या थे? इसके डीमेरिट्स थे, कैरोलस लीनियस ने यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए थे, ठीक है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं. ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए थे, और साथ ही साथ इन्होंने एंड्रोसियम एज यू नो, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन. तो उन्होंने ये दोनों चीजें, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर साथ लिए. जबकि हम कभी भी वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को एक साथ नहीं ले सकते. इसका मेन रीजन क्या है? अगर हम इनको एक साथ लेंगे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर, अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर कैन बी चेंज विद इन्वायरमेंट. ठीक है, ये क्लाइमेट या इन्वायरमेंट के साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं. लेकिन अगर हम एंडोसियम या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात करें तो ये क्लाइमेट के साथ या एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होंगे. दैट्स व्हाई दिस
classification, meaning artificial system of classification of plant, this was discarded. After artificial system of classification of Carolus lineans, the second system of classification of plant was natural system. Okay? Natural system of classification. It was given by natural system of classification was given by Bentham and Hooker. Okay? Bentham and Hooker, and Bentham and Hooker taken in consideration both the character morphological means external as well as internal characteristics, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम में कैरोलस लिनियस ने केवल मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या आएगा, प्लांट की हैबिट, ठीक है, कि प्लांट कहाँ ग्रो करता है, ये इसका ट्रॉपिक लेवल कैसा है, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ लीफ, साइज एंड शेप ऑफ लीफ, ये सब, ठीक है, इसमें ये सब किसमें था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। जबकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर ने मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक लिए। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर मींस हाउ द एम्ब्रियो डेवलप, ठीक है, प्लांट का एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो इस बेसिस पे उनको कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसमें एनाटॉमी भी स्टडी की, एनाटॉमिकल स्टडी की, एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद इन्होंने इसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी देखा, ठीक है। तो क्योंकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम और हुकर ने मॉर्फोलॉजिकल एंड इंटरनल दोनों कैरेक्टर को लिया, दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन इज मोर बेनिफिशियल देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जबकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनियस ने वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए और साथ ही उसमें एंड्रोसियम कैरेक्टर लिए, जबकि एंड्रोसियम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दोनों साथ नहीं लिया जा सकता, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन डिस्कार्डेड हो गया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए। तो द थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज phylogenetic system. Now, what is this phylogenetic system of classification? Phylogenetic classification means evolutionary relationship, how the organisms are linked with each other, ठीक है। इसमें evolutionary aspect देखा गया, और इसमें phylogenetic system में कहा जाता है कि अगर कोई भी प्लांट के किसी प्लांट के सेम टैक्सा है, ठीक है, अगर सेम टैक्सा, ठीक है, किसी प्लांट के सेम टैक्सा है, तो इट मींस उन प्लांट्स का एंसेस्टर सेम होगा। तो सेम टैक्सा है सेम और कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। अगर दो प्लांट को कंपेयर करें और दोनों प्लांट के टैक्सा सेम है, ठीक है, तो उन दोनों का एंसेस्टर क्या होंगे, उनके पूर्वज सेम होंगे और वो दोनों ही एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे, उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, प्लांट को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम था क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा बहुत सारे अदर सोर्स हैं जिनसे हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैनी अदर सोर्स मीन अगर किसी भी प्लांट का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, फॉसिल का मतलब क्या होता है, कुछ प्लांट के अवशेष, ठीक है, जिनसे हम उनको मैच करते हैं और कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ प्लांट के फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, नो फॉसिल रिकॉर्ड, अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो उनको अदर सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। और अदर सोर्स है एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है,
एम्ब्रियोलॉजी मीन्स हाउ द एम्ब्रियो डेवलप, ठीक है, उस प्लांट का एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ। तो इस आधार पे, इस बेस पे भी हम प्लांट को कन्वीनियंट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर सिस्टम है, कुछ और मेथड है प्लांट को क्लासिफाई करने का। ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट न्यूमेरिकल, सो फॉर श्योर देयर आर सम नंबर्स, ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर मोर देन 100 कैरेक्टर लिए जाते हैं और उन 100 कैरेक्टर्स को डिफाइन, उन 100 कैरेक्टर को, और इन 100 कैरेक्टर लाइक शेप ऑफ लीफ, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, इस तरह से हमें 100 कैरेक्टर लेने हैं एक साथ और उनको फीड करना है कंप्यूटर पे, ठीक है, और उनको कुछ कोड दे देते हैं, ठीक है। फॉर दिस 100 कैरेक्टर देयर आर सम स्पेसिफिक कोड। सपोज अगर हम बात करें लीफ, ठीक है, नंबर ऑफ लीफ के लिए सपोज कोड है 002। इट इज नॉट राइट, जस्ट इट इज जस्ट एग्जांपल, ओके। जैसे लीफ को हमने ये कोड दिए तो स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर को स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा। तो यहाँ पर 100 कैरेक्टर होते हैं, मोर देन 100 कैरेक्टर होते हैं, इनको कंप्यूटर पर फीड किया जाता है और हर कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक कोड और सीरियल नंबर दिया जाता है, नंबर और स्पेसिफिक कोड दिया जाता है। इस बेस पे हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज अगर लीफ का नंबर के लिए ये कोड है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कोई और कोड है। तो अगर हमें कोई नया प्लांट मिलता है, सपोज ये हमें प्लांट मिला और इसको हम ए से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, अभी ए से आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसको हमने नाम क्या दिया ए, और अभी इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा है। तो इसको क्या हम मैच करेंगे, पहले हम इसकी लीफ मैच करेंगे, नंबर ऑफ लीफ मैच करेंगे। अगर नंबर ऑफ लीफ किसी भी कोड से, इस कोड से मैच होता है, ठीक है, जिस कोड से मैच होगा या जिसमें ज्यादा मैचिंग जिसमें मिलेगी उस प्लांट को उस कैटेगरी में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, और इन सारे कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा नहीं कि अगर एक कैरेक्टर आपका मैच कर रहा है तो प्लांट को उस कैटेगरी में रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें सारे कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो दिस इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद है कुछ और मेथड है जिनसे हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं और उनको ग्रुप में रख सकते हैं अलग से। नेक्स्ट मेथड है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो इट मींस सेल, ठीक है। अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें क्या किया जाता है, साइटो टैक्सोनॉमी में सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर, ठीक है, इनकी स्टडी की जाती है और इस बेस पर प्लांट को कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये था साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी के बाद की बात करें तो इट इज कीमोटैक्सोनॉमी। लास्ट कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो itself means chemical, ठीक है, केमिकल। तो इसमें क्या किया जाता है, प्लांट में कुछ एंजाइम्स या कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उस बेस पे प्लांट को कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। तो कीमोटैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी की जाती है, सब्सटेंस और एंजाइम प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो इन सब की बेस पे हम प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट की किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये सिस्टम थे प्लांट को क्लासिफाई करने के। तो प्लांट को कैटेगराइज किया जाता है इनटू 5 कैटेगरी लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट,
टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज हैं प्लांट की। तो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा, प्लांट को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है और किस क्लासिफाइड करके इन कैटेगरीज में रखा जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गी। ठीक है, इससे पहले अगर एल्गी की हैबिट की बात करें, एल्गीज आर सिंपल, ठीक है, सिंपल एलोइड, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, largely aquatic, but some of algae can be found on stone or on wood। ठीक है, कुछ पत्थरों के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वुड यानी कि लकड़ी के ऊपर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड मींस आपने पहले ही पढ़ा, जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा कि विटेकर्स ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। ठीक है, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर लिए थे, उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर देखा था, उसके बाद थैलस स्ट्रक्चर देखा था, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन्होंने देखा था। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे विटेकर्स ने अपने क्लासिफिकेशन। तो इसमें थैलस का मतलब क्या है? ठीक है, तो वही थैलस, थैलॉइड इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें थैलस का मतलब होता है which have no true roots, stem and leaf। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होंगे। उस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है थैलस स्ट्रक्चर। थैलस मींस नॉट ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, these are autotrophic for sure because it is plant, these are plant and all plant are autotrophic because presence of some pigment, ठीक है, like chlorophyll। most of algae present in water, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या फिर वो मैराइन वाटर हो। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ एल्गी स्टोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऑन स्टोन। ठीक है, और सम एल्गी कैन बी ग्रो ऑन वुड। ठीक है, लकड़ी के ऊपर भी कुछ ग्रो कर सकते हैं। कुछ एल्गी सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसकी हैबिट थी, प्लांट की हैबिट यानी कि एल्गी की हैबिट थी। आफ्टर हैबिट देयर आर सम एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक अगर हम एल्गी के एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन मींस एल्गी लिव विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, लाइक एल्गी और फंगस। एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहते हैं। फंगस एल्गी से फूड प्रोवाइड करता है, वो फूड लेता है, जबकि एल्गी फंगस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और फंगस क्या करेगा, इससे फूड एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आपको पता है फंगस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और मोस्टली दीज आर सेप्रोफिटिक, बट हेटेरोट्रॉपिक में भी ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो एल्गी से ये फूड लेंगे और एल्गी इनसे, ठीक है, एल्गी इनसे प्रोटेक्शन लेंगे। ठीक है, तो दिस एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस नॉन एज lichen। ठीक है, also this algae can be associated with animal। ठीक है, it is very important, ये algae एनिमल के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, लाइक स्लॉथ बियर। और ये बहुत
सारी जगह आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लॉथ बियर के साथ भी ये एसोसिएट हो सकती है, एसोसिएशन बना सकती है, ठीक है। तो दीज आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंगस व्हिच इज नोन एज लाइकेन एंड विद दे कैन बी एसोसिएट विद स्लॉथ बियर, ठीक है, एनिमल्स। हैबिट और एसोसिएशन के बाद अगर हम बात करें इनके फॉर्म और साइज की, तो फॉर्म एंड साइज आर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। एल्गी का साइज और फॉर्म दोनों वेरिएबल होते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात हम करें, ठीक है, इसके एग्जांपल की हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इज सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें एक ही सेल होती है, इट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होगा। और इसी में अगर बात करें कैल्प, कैल्प का स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबे हो सकते हैं। दीज आर जियांट स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर जियांट हो सकते हैं, ठीक है। और सेवरल मीटर तक, सेवरल मीटर इनकी हाइट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आप वेरिएशन देख रहे हैं इसके साइज में। एक क्लेमाइडोमोनास बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं एल्गी में, और दिस कैल्प आर जियांट, दिस कैन बी सेवरल मीटर इन हाइट। वैसे ही वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वॉलवॉक्स भी एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप देखिए वॉलवॉक्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी बना के रहते हैं एक साथ, ठीक है। एंड द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स नॉन एज सीनोबियम, सीनोबियम, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीनोबियम क्या होता है, कॉलोनीज ऑफ वॉलवॉक्स नॉन एज सीनोबियम। तो वॉलवॉक्स कॉलोनीज की फॉर्म में रह रहे हैं। वैसे और एग्जांपल की बात करें, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। वैसे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स की बात करें तो these are filamentous, filamentous, ठीक है। इनमें फिलामेंट होते हैं, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनके फॉर्म और साइज वेरी कर सकते हैं। साइज में बात करें तो क्लेमाइडोमोनास कैन बी, क्लेमाइडोमोनास इज माइक्रोस्कोपिक एंड कैल्प आर जियांट, दिस कैन बी सेवरल मीटर इन हाइट, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक, ये क्लेमाइडोमोनास बहुत छोटे हैं, और इसकी बात करें कैल्प की तो ये 7 मीटर इन हाइट हो सकते हैं। तो इनकी साइज में क्या होती है, वेरिएशन होती है। वैसे ही फॉर्म में भी बात करें तो वॉलवॉक्स कॉलोनीज बना के रहते हैं बहुत सारी, ठीक है, लाइक दिस, these are colonies of volvox and these colonies of volvox known as synobium, synobium, okay, synobium, it is very important। volvox की जो कॉलोनी होती है उनको सिनोबियम कहा जाता है। वैसे अगर बात करें स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, these are filamentous algae, ये क्या होते हैं, फिलामेंट स्ट्रक्चर में इनका, ये फिलामेंट की फॉर्म में रहते हैं। इसके बाद इनकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इनमें रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें, ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोगायरा, यू कैन आल्सो सी ऑन एनसीईआरटी बुक, ठीक है, दिस इज somehow structure of Spirogyra, and this Spirogyra can be broken down into different parts, ठीक है, ये parts इसके broken down होंगे ऐसे, ठीक है, ये अलग होगा ऐसे, और ये part इनका अलग broken down होगा, and these part are also capable to reproduce, ठीक है, इससे
एक नया स्पाइरो वगैरह बनेगा, इससे एक नया स्पाइरो वगैरह और इससे एक नया स्पाइरो वगैरह। तो दिस मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन known as fragmentation. So vegetative reproduction can be take place in algae. दूसरी हम बात करें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है जो स्पोर से, ठीक है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल में इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन, और मोस्टली इसमें जो स्पोर बनेंगे वो जू स्पोर होते हैं, ठीक है, जू स्पोर। जू स्पोर मींस मोटाइल स्पोर, ठीक है, जू स्पोर मींस मोटाइल स्पोर। मोटाइल मींस व्हिच आर कैपेबल टू मूव एंड वन मोर थिंग, जितने भी मोटाइल स्पोर होंगे उनमें डेफिनेटली फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो दीज आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, ठीक है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये जू स्पोर होंगे और फ्लैजिलेटेड होंगे, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब बात करें हम इसमें थर्ड यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, थर्ड वन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, ठीक है, एंड एज यू नो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन organism have to make gametes, male gamete as well as female gamete, okay। तो अगर हम gametes की बात करें on the basis of this on the basis of size and shape of these gametes, sexual reproduction can be categorized into three parts. First is isogamous. Isogamous. First is isogamous. Isogamous means iso means same or gamous means gamete. Iso means same and gamete. Iso means same and gamous means gamete, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बन रहे हैं वो दोनों गैमेट क्या हो, सेम हो, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज आइसोगेमस। अगर दोनों गैमेट क्या हो, सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास, इसके एग्जांपल क्या हैं, क्लेमाइडोमोनास, मोनास, ठीक है। And one more thing, there are various species of Chlamydomonas, approximately 500 species. So some species are showing isogamous type of reproduction, sexual reproduction, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, Chlamydomonas है, और इसमें भी आइसोगैमस में भी दो तरह के गैमेट हो सकते हैं, यानी कि एक जिसमें क्या हो, सेम एंड फ्लैजिलेटेड, सेम होंगी और फ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि दोनों सेम होंगे, दोनों गैमेट सेफ में। सपोज दिस इज क्लेमाइडोमोनास एंड दीस आर फ्लैजिला, ठीक है। तो दोनों ही गैमेट मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या होंगे, सेम और फ्लैजिलेटेड होंगे, तो वो भी क्या होगा, आइसोगैमस। और अगर दोनों गैमेट सेम हुए बट नॉट फ्लैजिलेटेड, ठीक है, सेम होंगे बट नॉट फ्लैजिलेटेड, तो वो भी क्या होगा, आइसोगेमस होगा, क्योंकि उसमें गैमेट क्या है, दोनों सेम है, दोनों का शेप और साइज क्या है, एक ही है, बट उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। और इसका एग्जांपल होगा स्पाइरोगाइरा, ठीक है। सो दिस इज आइसोगेमस मींस सेम गैमेट। अगर शेप और साइज दोनों गैमेट का, मेल और फीमेल का सेम हो, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे, ठीक है। और आइसोगैमस में जो गैमेट हो सकते हैं वो सेम और फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, एग्जांपल इसका क्लेमाइडोमोनास। और आइसोगैमस में वो सेम और नॉट फ्लैजिलेटेड, सेम होंगे बट उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, उसको कहेंगे। और उनके एग्जांपल, वो भी आइसोगैमस होगा और उनके एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। These examples are very important and these examples also given in first chapter of 12th class, ठीक है, in chapter reproduction। तो sexual reproduction में first हमने पढ़ा isogamous and second is anisogamous। So gamous,
An isogamous, as the name indicate, and means not. Iso means same. So not same, and gamous means gamete. अगर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों का शेप और साइज अलग अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज नोन एज एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस। और इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल होंगे क्लेमाइडोमोनास, अब डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन एग्जांपल ऑफ आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। द एग्जांपल ऑफ आइसोगैमस इज क्लेमाइडोमोनास आल्सो, बट I told you there are several species of Chlamydomonas. So some species of Chlamydomonas can be shown anisogamous type of sexual reproduction, जिसमें गैमेट के जो जिसमें गैमेट का शेप अलग अलग होते हैं, गैमेट सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है, गैमेट सिमिलर नहीं होंगे। थर्ड वन की बात करें, थर्ड इज oogamous. oogamous. Now what is oogamous? oogamous में क्या होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा, मोटाइल और स्मॉल होगा। मेल गैमेट होगा मोटाइल यानी कि मूव कर सकता है, और स्मॉल यानी कि छोटा होगा, ठीक। whereas फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल एंड लार्ज। फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल एंड लार्ज। सपोज अगर हम बात करें तो ये गैमेट ऐसे होगा, दिस इज सपोज फीमेल गैमेट। नॉन मोटाइल मींस दीज हैव नॉट फ्लैजिला, ठीक है, नॉन मोटाइल जहां भी है इसका मतलब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज फीमेल, ठीक है। और मेल की बात करें तो मेल छोटे होंगे बट हैव मोटाइल, बट दीज आर मोटाइल, इट मींस दीज हैव फ्लैजिला। तो मेल गैमेट में क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और फीमेल गैमेट में फ्लैजिला नहीं होंगे, और ये फीमेल गैमेट बड़े होंगे। तो दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट इज मोटाइल एंड स्मॉल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल एंड लार्ज, दैट इज नोन एज oogamous. And the example of oogamous type of sexual reproduction is volvox and fucus, ठीक है। volvox and fucus इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें उनकी इंपॉर्टेंस की, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। सो फर्स्टली दीज आर CO2 फिक्सचर। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है इससे, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज होगी, ठीक है, ऑक्सीजन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का तरह काम कर सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 50% CO2 ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में 50% CO2 इज फिक्स्ड बाय एल्गी। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस होगी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में और CO2 को फिक्स करने में, ठीक है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ये हो गई, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंस इसकी बात करें तो दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। इट मींस प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जिनसे कोई भी फूड साइकिल स्टार्ट होती है। अगर हम फूड साइकिल बनाए तो उसकी स्टार्टिंग हम प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही करते हैं। इट मींस ये प्राइमरी प्रोड्यूसर इसीलिए बेसिस ऑफ फूड साइकिल होती है, ठीक है। फूड साइकिल का बेस यही बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें, some of algae can be utilized as food, ठीक है। ईटेबल एल्गी जिन्हें कहा जाता है, और जिसके एग्जांपल है क्लोरेला क्या है,
जब स्पेस ट्रेवल और स्पेस में जाते हैं तो क्लोरेला एक ईडेबल एल्गी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरेला को ईट खा सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरेला इज ईडेबल एल्गी। देयर आर सम अदर मैराइन एल्गी व्हिच आर ईडेबल। कुछ मैराइन एल्गी हैं, ठीक है, जो क्या है, जो ईडेबल है, और वो है लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड सार्गासम These are three marine algae which are edible, जिनको हम फूड के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंस की इनकी बात करें तो एल्गी से हमें हाइड्रोकोलाइड्स मिलता है, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स हम इनसे प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज हाइड्रोकोलाइड्स? हाइड्रोकोलाइड्स मींस द सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल टू एब्सॉर्ब वाटर, जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है उन सब्सटेंस को कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम एल्गी। कौन से एल्गी से हमें हाइड्रोकोलाइड मिलता है? वो है एल्गिन, ठीक है, एल्गिन एंड केराजीन, ठीक है। केराजीन और एल्गिन से हमें हाइड्रोकोलाइड्स मिलते हैं। और हाइड्रोकोलाइड्स क्या है? द सब्सटेंस व्हिच आर एबल टू होल्डिंग वाटर, जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का फायदा ये है कि इसको हम पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर और इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम इससे एगार एक सब्सटेंस होता है, इससे एल्गी से प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका यूज होता है आइसक्रीम मेकिंग और जेली मेकिंग में। जेली, चीप और आइसक्रीम मेकिंग में एगार का यूज होता है। और एगार प्रोवाइड होता है हमें एल्गी व्हिच नेम इज जिलेडियम, ठीक है। और साथ ही साथ में ग्रेसिलेरिया से भी हमें एगार मिलता है, ठीक है। तो एगार का यूज आइसक्रीम मेकिंग और जेलीज मेकिंग में होता है। नाउ अगर हम एल्गी के कलर के बारे में बताएं, कलर के बारे में डिस्कस करें, देयर आर वेरियस कलर इन एल्गी लाइक ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ठीक है। तो बेसिस ऑन दिस कलर एल्गी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी like chlorophyci which have green color, biophyci in which have brown color and rhodophyci which algae are red in color, okay। और इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।